Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to know about chapter motion for grade 9th. So let us start the chapter for today. So introduction. As we all know, motion is movement. Movement of anything is said to be in motion. For example, animals and humans. Animals and humans move from one place to another, but plants are fixed at one place in the soil. So this is a plant and this is fixed at a one place in the soil. So they cannot move. So what we can say, if this person, yes, so this is a person and it is running, and this person is moving, running, moving, कुछ भी कह सकते हैं आप. So we can say that this person is in the state of motion. So we can say that this person is in the state of motion. So state of motion, what you understand, what you learn with this state of motion. So there are two concepts. First concept is rest and second is motion. So motion के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट रेस्ट. रेस्ट मतलब जब आप थक के आते हो, वो थकान वाला रेस्ट नहीं किया, थकान हो रही है आपको रेस्ट ले लिया, वो वाला रेस्ट नहीं. फिजिक्स में, साइंस में रेस्ट का मतलब होता है स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब एक जगह पे खड़े रहना, जैसे प्लांट इज एट रेस्ट position, in the state of rest. So this plant is in a state of rest, but this person is in state of motion. This person is in the state of motion. So we can say that the plants are in the state of rest and the animals, humans, are in state of motion, but all the humans are not. Let me tell you about it. So let us talk about what is a motion. So motion of an object is perceived when its position changes with respect to a stationary object. So I am saying you that this is a plant and I am moving here. Okay, I am moving. So I will say that I am moving 10 meter. I am moving 10 meter from the plant tree. So I hope it is clear. So definition of motion अगर आपको मार्क आती है एग्जाम में, so you can write this definition. So let us talk about distance and displacement. So motion वाला concept I think is clear to you all. So let us talk about distance and displacement. So डिस्टेंस के बारे में क्या बात करते हैं कि टोटल पाथ कवर्ड. हमने भाई टोटल पाथ कवर कितना किया, 10 मीटर्स कवर किया, 20 मीटर्स कवर किया, हम इसको बोल देते हैं डिस्टेंस. और डिस्टेंस की अगर आपको एग्जाम में आती है डेफिनेशन तो आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड by the object during motion. So what is a distance? Distance is a total path covered by an object during in a state of motion. So what about displacement? Displacement the shortest path between the initial and the final position of the object. So अब यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम कुछ चीज़ों को सॉल्व करके देखते हैं ना तब समझ में आता है. So मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ. So here is the first question for you all. A person moving from 0 point to A
distance of 25 meters, and then he moves from point A to B 40 meters, then he moves point B to C 100 meters. So please tell me what is the distance and displacement here. So let us solve this question. So firstly, let us talk about distance. डिस्टेंस से टोटल पाथ कवर्ड. सो कितना पाथ है हमारा 25, 40 and 100. So we are going to add this 25, 40 and 100. So please add, you will get the answer 165. So we can say that distance is 165. And what about displacement? So the displacement is, so formula of displacement is final position minus initial position. Final position 165, initial position 0. So what will be the answer? 165. So the answer is 165 for both. So this is the distance as well as the displacement. So I think it is clear. So let us talk about some important formulas. So distance is the length of actual path, shortest distance displacement होता है, और initial position between the final position. जब इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ना ही वो नेगेटिव में हो सकता है, ना ही वो ज़ीरो हो सकता है. पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है. तो मैं बताऊंगी इसके बारे में आगे. सो इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आपने एक फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि एक पर्सन यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और दूसरा पर्सन यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स है जो वो लगा रहा है. तो कितनी फोर्स हुई? नेट फोर्स 20. यहाँ पर वो 20 लगा रहा है और यहाँ पर वो 30 लगा रहा है. 20 माइनस 30 कितना हुआ? 20 माइनस 30 कितना हुआ? -10. सो ये जो सा फोर्स है वो नेगेटिव भी हो सकती है. ये तो वो कौन सी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो. बट जैसे मेरा डिस्टेंस है, मैंने बात की कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो वो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर इट हैज़ नो डायरेक्शन. एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो नाउ let us solve some numericals. Yes, let us solve some numericals here. Okay, let us solve some numericals. So an object is moving in a circle of radius r. So let us draw a circle here. So this is a circle with a radius. Radius कितना है? The radius is, let me erase. The radius is r. Wait a minute please. The radius is r, and we have to calculate distance and displacement when it completes half of the circle. So but we can say, so I have this. So I can say कि इसका रेडियस जो है r है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, इसका डायमीटर कितना होगा? 2r होगा.
तो इसका डायमीटर कितना होगा, 2r होगा, डायमीटर 2r होगा। तो हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस होती है कि इसने यहाँ पर कितना पाथ कवर किया। सो क्या करेंगे हम करेंगे हाफ इंटू 2πr। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया πr। सो πr क्या है आपका, डिस्टेंस है फॉर द फर्स्ट वन, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आके रुका, उसने क्या किया, उसने एक सर्कल लिया और यहाँ पर आके रुका, तो वो इधर से इधर ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना, ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 2r हो गया, क्योंकि इतना तो r है और यहाँ पर कितना हो गया 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। जब व्हेन इट कंप्लीट्स फुल ऑफ द सर्कल, सो इसका डिस्टेंस कितना होगा 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, बिकॉज उसने यहाँ से शुरू किया और गोल गोल घूम के वो उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पर उसने शुरू किया। सो ये आपकी प्रदीप बुक में से मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कौन सा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो मैंने ये 5 मिनट्स में मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मैंने 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। ये 10-10 का गैप है, और ये तो टाइम तो कोई बात नहीं, टाइम का तो हम देखते भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर आपको डेफिनेशन आ गई क्या अपने एग्ज़ाम में, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा। सो ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू 2 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन। सो लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जो सा अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप यही डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट। So let us know about speed. Speed is what? Speed is the distance traveled by body per unit time. So formula for speed is distance traveled by time taken. So speed और एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।